Hello bachcho, let's read the question. All of us, I just read the question on the basis of which you have to explain the given question. Okay, all of us, I will just read and then I will explain you all paragraph, right? Okay. The existence of negative charge particle in an atom was shown by J.J. Thomson as a result of study on the passage of electricity through the gases at extremely low pressure, known as discharge tube experiment, when a high voltage of order 10,000 volt or more were impressed across the electrodes. Okay, some sort of invisible ray moved from the negative electrode to the positive electrode. These rays are called as cathode rays. Now, as written, these rays are invisible. Then how we come to know that the rays travel? Okay, the cathode rays exist. Okay, the question answer of that question is explained on the next paragraph. Cathode rays travel in the straight path in the absence of electric and magnetic field. Cathode rays consist of material part and charge particle. Okay, cathode rays produce X-ray and light emitted when they strike on the zinc sulfide screen. Cathode rays penetrate through the thin sheet of aluminum and other metal too. They affect the photographic plate on passage heating effect when they strike on the metal foil. The rate of change in the mass, the ratio of change to mass, okay, that is charge by mass, is same for the cathode rays irrespective of the fact that which gas is used in the tube. The existence, okay, now the existence of negative charge was proved by J.J. Thomson, but as we know the atom is electrically neutral, so यहाँ पर negative charge के साथ positive charge भी होगा, right? तो इसको प्रूव किया था आपके गोल्डस्टीन ने. The existence of positive charge particle in an atom was shown by E. Goldstein. He repeated the same discharge tube experiment by using a perforated cathode. He was observed that when a high potential difference was applied between the electrode, not only cathode rays were produced, but also new type of rays were produced simultaneously from anode to cathode. Okay, from towards cathode and pass it through the holes or canal of the cathode rays termed as canal rays or anode rays. तो क्या किया गया था, कैथोड रेज में होल कर दिया गया था. ओके, होल कर दिया गया मतलब क्या, वहां पर से आपकी जो एनोड रेज पास करेगी वो उस होल से पास हो गई थी, इसलिए इसको बोला था कैनाल रेज भी बोला गया था. These rays travel in the straight line and consist of positive charge particle. These have the kinetic energy and produce heating effect also. Okay, the E by M ratio of these rays is smaller than that of electrons. Unlike the electrode rays, their E by M value is dependent upon the nature of gas. तो आपका कैथोड रेज में क्या था कि कोई भी गैस यूज कर लो, E by M सेम था कैथोड रेज के लिए, बट एनोड रेज के लिए डिफरेंट होगा और ये वैल्यू भी बहुत ज्यादा कम थी कैथोड रेज की कंपैरिजन में. क्यों थी सब बताया जाएगा. बिल्कुल सिंपल है. दे रेज प्रोड्यूस फ्लैशेज ऑफ लाइट ऑन जिंक सल्फाइड स्क्रीन टू जस्ट लाइक एनोड रेज. Cathode rays, anode is also same and can pass through thin metal plate. Okay, and also produce physical and chemical changes and capable to ionize the gas. Okay, ये आपको क्वेश्चन गिवन है जो मैं थोड़ी देर में पढ़ दूंगा. क्या है, कैथोड रेज के ऊपर. तो देखिए सबसे पहले एक्सपेरिमेंट को थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको. तो इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया था, देखिए इस एक्सपेरिमेंट में क्या करा गया था. सबसे पहले यहाँ पर दो इलेक्ट्रोड लिए गए थे, एक नेगेटिव चार्ज और एक पॉजिटिव चार्ज. नेगेटिव चार्ज को देखिए कैथोड, ओके, और पॉजिटिव चार्ज यानी एनोड. एनोड, ओके. तो यहाँ पर क्या हो रहा था, देखिए यहाँ पर आपका क्या हो रहा था, आपने यहाँ पर ली थी गैस, जैसे आपने कोई मान लीजिए हाइपोथेटिकली हीलियम गैस ली थी, राइट. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ था, और इसको एक फ्लास्क में दिखा देता हूँ मैं आपको. ओके, बैटरी से जोड़ दिया था इसको, जैसे कि आपको पिछले पेज पे दिखा रखा मैंने, बैटरी से जोड़ा होगा तभी तो इसके ऊपर कोई चार्ज आया होगा, राइट. ओके, बैटरी से जोड़ दिया. तो यहाँ पर हमें क्या मिला, देखिए अब बैटरी से जोड़ दे क्या होगा, अब गैस है, जैसे ही आपने बैटरी से जोड़ा चार्ज प्रोड्यूस हुआ और हीलियम किस में आयनाइज हो जाएगा, हीलियम आयनाइज हो जाएगा हीलियम पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन. ओके, मान लीजिए आपने आर्गन गैस ली होती तो आर्गन दोबारा से किस में डिसोसिएट हो जाता,
आर्गन पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन। अब देखिए आपको पता होगा अपोजिट चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। जैसे ही यहाँ पर इलेक्ट्रॉन निकला, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन निकला, तो किसकी तरफ जाएगा? नेगेटिव की तरफ नहीं जाएगा, वो जाएगा पॉजिटिव चार्ज की तरफ। वो किसकी तरफ जाएगा भाई? पॉजिटिव चार्ज की तरफ, एनोड की तरफ। तो जे जो रे कैथोड से ओरिजिनेट हुई थी उसी को बोला कैथोड रेज। ये काम किया था जे जे थॉमसन ने। ओके, और इसको बोल दिया कैथोड रेज। और बाद में पाया गया कि बहुत ही सब एटॉमिक पार्टिकल के कारण है, ओके, जिसको बोला गया इलेक्ट्रॉन। ओके, कैथोड रेज। अब उसने कहा कि भाई अगर नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करा तो एटम में पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, क्योंकि एटम तो ओवरऑल न्यूट्रल है। ओनली नेगेटिव होगा तो नेगेटिव चार्ज एग्जिस्ट करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल भी होना चाहिए। तो उसने क्या किया, थोड़ा उसने थोड़ा सा चेंज किया, पोटेंशियल को कम किया, प्रेशर को हाई किया, कुछ थोड़ा मोटा चेंज किया, और उसने पाया कि सिर्फ एक ही तरह की रे नहीं है, ओके, एक दूसरी तरह की भी रे भी है जो कि कैथोड की तरफ मूव करती है। अब आप कहेंगे कैथोड की तरफ मूव करती है, यानी कि कैथोड की तरफ क्यों मूव करेगी? जो आपका ये आपका पार्टिकल है पॉजिटिव चार्ज, देखिए नेगेटिव चार्ज चला गया कि कैथोड की तरफ, सॉरी, नेगेटिव चार्ज चला गया एनोड की तरफ, पॉजिटिव चार्ज कहां से जाएगा? कैथोड से एनोड की तरफ। ओके, और इसी को बोल दिया गया था क्या? एनोड रेज। ओके, तो ये आपका कुछ डाटा था, इसके बेस पे बोला गया कि पॉजिटिव चार्ज भी डेफिनेटली यहाँ पर एग्जिस्ट करता है। ओके, अब पैराग्राफ में देखिए और भी कुछ बातें लिखी है, एक मिनट। ओके, अब आप कहेंगे सर ये पता कैसे चला ये एग्जिस्ट करती है? तो उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ले ली। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर उन्होंने क्या किया, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, एक बार यहाँ पर एक बार यहाँ पर। तो क्या हुआ, देखिए जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन आ रहे थे तो इलेक्ट्रॉन स्ट्राइक करेंगे इसके ऊपर, और जिंक सल्फाइड होता है कि जिंक सल्फाइड का नेचर होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल इसके ऊपर अटैक करेगा तो ये ना ये आपका लुमिनिसेंस देगा, यानी लाइट इमिट करेगा, जो इस बात को प्रूव करा कि कोई पार्टिकल यहाँ पर ट्रेवल कर रहा है। ओके, अब देखिए इन दोनों की कुछ प्रॉपर्टी भी होगी। फॉर एग्जांपल पहले कैथोड रेज की मैं बात करूं तो देखिए आपकी कैथोड रेज इलेक्ट्रॉन के कारण है, तो सबसे पहली बात इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। ओके, अब दूसरी बात क्या है कि आप कोई भी गैस यूज कीजिए, हीलियम करो, आर्गन करो, इलेक्ट्रॉन तो सबके अंदर सेम है। ओके, यही रीजन है इसका चार्ज बाय मास रेशो कांस्टेंट है। ओके, उस टाइम पे चार्ज बाय मास रेशो निकाला गया था, लेकिन हमें कितना हमें पता होना चाहिए। ओके, उसने चार्ज बाय मास रेशो निकाला था, लेकिन बाद में आपका मास अलग से कैलकुलेट किया गया था ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट के द्वारा, चार्ज अलग से एक्सपेरिमेंट कर लिया था, तो हमें चार्ज और मास दोनों की वैल्यू पता चल गई थी। लेकिन आपको वैल्यू याद होनी चाहिए, जैसे कि इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ओके, तो कैसे, चार्ज हमें पता है एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना होता है, 1 यूनिट नेगेटिव चार्ज, यानी कि 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम। ओके, नेगेटिव चार्ज जरूर लिखना। ओके, और मास कितना होता है इलेक्ट्रॉन का? 9.1 इंटू 10⁻28, ओके, ग्राम। तो चार्ज बाय मास अगर आप इसको सोल्व कर लोगे तो आपके पास देखिए कितना आ जाएगा, आपके आंसर आ जाएगा माइनस का 1.7588 इंटू 10⁸ कूलम पर ग्राम, इतना आपका आंसर आ जाएगा। ये कुछ प्रॉपर्टी थी। ओके, और ये वैल्यू फिक्स रहेगी क्योंकि चार्ज तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर सेम है और मास भी इलेक्ट्रॉन का सेम है, क्योंकि सारे इलेक्ट्रॉन एक जैसे ही होते हैं, राइट। ओके, और ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट थी, और ये मूव कहां से हो रही थी? कैथोड से एनोड की तरफ, नेगेटिव चार्ज। अब देखिए इसके बेस पे आपको क्वेश्चन के आंसर देना है। पहला क्वेश्चन है, ओके, कैथोड रेज द वैल्यू ऑफ ई बाय एम एच, यानी ये वैल्यू आपसे पूछी गई है, क्यू बाय एम। इज इट डिपेंडेंट अपॉन द नेचर ऑफ कैथोड? बिल्कुल सही है। ओके, कोई भी गैस आप डालो, चार इलेक्ट्रॉन तो सबके अंदर सेम होता है, तो डेफिनेटली ये वैल्यू आपकी कांस्टेंट आनी थी। इज कांस्टेंट बिल्कुल सही है। ओके, ये वैल्यू आएगी हमेशा। ओके, ये वैल्यू आए, ये भी ठीक है, हमने अभी भी मैंने आपको करके दिखाया। एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ अबव। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। ओके, होप you understand well. Happy learning and goodbye.